पोटका में ब्रेन मलेरिया का कहर, 10 दिन में 3 बच्चियों समेत 4 बच्ची की मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका विधानसभा क्षेत्र में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में 3 बच्चियों समेत 4 लोगों की मौत ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रभावित गाँव में लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं। मेडिकल टीमें गाँव-गाँव जाकर जाँच और उपचार में जुटी है, लेकिन संक्रमण थमता नजर नहीं आ रहा है। सबसे दर्दनाक मामला सानग्राम गाँव का है, जहाँ कस्तूरबा विद्यालय की छात्रा लक्की सरदार की ब्रेन मलेरिया में मौत हो गई। वहीं महावीर सरदार के परिवार ने भी अपनी 2 बेटियों को इस बीमारी से खो दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि समय पर बेहतर इलाज और रेफर की सुविधा नहीं मिलने से हालत और भी गंभीर हुए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र में बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया जा रहा है और संक्रमित मरीजों का तत्काल उपचार किया जा रहा है। इसी बीच समाज सेवियों और स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने, नियमित फगिंग, दवा छिड़काव और गंभीर मरीजों के लिए त्वरित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल पोटका में ब्रेन मलेरिया का बढ़ता प्रकोप प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, जबकि स्थानीय लोग इस गंभीर स्थिति पर प्रभावी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। আমার নাম কাতো সর্দার, লক্ষ্মী সর্দারে আমি কাকা বটি। আমি এই ওয়ার্ক প্রতিপালন করেছিলি। তো এইখানে যখন গুরুবার দিনে ওই ডাক্তার ফাক্তার আসলেন, বলছেন এখান থেকে যাইছে। আমার এখানে এই পাড়াটা গোটা টেস্ট করাইলে একটা এখানে পজিটিভ বাইরে না, আর এখানে 10 দিকের যাচ্ছে। क्या बोल रहे हैं कि आप लोग को यहाँ से बीमारी लेके गया था? হ্যাঁ, अच्छा আর আমাদের এখানে যত টেস্ট হইলে একটা বিমারি বাইরে না। अच्छा আর ওইরকম মিডিয়া এই বলছে যে এই লোককে যে ওখানে থেকে বেমার ঘরের লেগে বেমার নিয়ে আসছে। যদি আমাদের এখানে হইতো তো 2-1টা তো পজিটিভ বাইরেই তো। তো এখানে তো একটাও বাইরেইলো না। লক্ষ্মী সর্দারে আমি চাচি বটি লক্ষ্মী সর্দার। কি হয়েছিল পুরো বাতাও? উয়াকে তো আমরা হোস্টেলে দিয়েছিল, উয়ার কি হয়েছিল কি না আমরা তো ঘরে নাই ছিল, আমরা তো জানতে পাই নাই। উয়াকে হোস্টেলে দেওয়া হয়েছিল, মানে তো হোস্টেলে দেওয়া হয়েছিল। আর উঠেন কল আসিল সোমবার দিনে আমাদের কাছকে। তো আমাদের কাছকে বিকালে ফোন আসিল। उसके बाद উয়ার তো মাতা পিতা নাই, তো ওর ভাই আর উয়ার বহিন উয়াকে দেখতে গেল। দেখতে যাওয়ার পরে যে পটকা বলকে হসপিটাল হয়েছে, ওইখানে উয়াকে ভর্তি করা আছে। তো ভর্তি করা আছে তো একটু ঠিক ঠিক ছিল। তারপরে ঠিক ছিল, সোমবারটা বিতে গেল। তারপরে মঙ্গলবার রাত 11টা কি মঙ্গলবারই তো, মঙ্গলবার রাত 11টার সময় ইঠেন নার্স গিলা বললেন যে আমাদের দ্বারাই হবে নাই, এফআর করে দিব সদর। কাগজ বানিয়ে দেন। এফআর এর সময় অ্যাম্বুলেন্স কিছু মিলে নাই। তো আমরা নিজে 1200 টাকা খরচা করি, আমরা নিজে গাড়ি করি সদর লেগলি। তো সদরে যাওয়ার বাদেও ছানাটার টুকুই একটুকু মানে আর কমিলেও নাই বেমার, মানে টুকুই বাড়িলেও যে কমিলেও নাই, মানে লাস্ট পজিশন হয়ে গেল। ওখানে আমাদের মনে ডর ঢুকলো যে ওরা বলছে যে সদর তোমরা নিয়ে যাও। তো আমরা বললি আমরা সদর নিয়ে যাবো না, হয় এমজিএম নিয়ে যাও। আমরা এমজিএম নিয়ে যাবো না বললি। ওরা লাস্ট পজিশনে মুখের মুখ ব্লাড বাইরে গেল। ওখানে আমাদের ভয় হয়ে গেল যে আমরা বলছি যে আমরা ঘরকে লাগবো, আমাদের ডাক্তার একটা ভালো আছে, আমরা এখানে ভর্তি করব আর ঝাড় ফুকাটুকু করাবোই। আর ওই জন্য আমরা নিয়ে আসলি ঘরকে। আর ঘর নিয়ে আসার পর মানে ডাক্তারখানায় ওর জীবনটা চলে গেল। তো অ্যাম্বুলেন্স তোমাদেরকে নাই দিয়া? না, অ্যাম্বুলেন্স দিয়া যায় না, আমরা নিজে 1200 টাকা দিয়ে করে অ্যাম্বুলেন্স করেছি। আর সদরের কাগজ, সদরের আমরাকে বললো কাগজ দেই নাই ওখানে, রিপোর্ট কাগজ দেই নাই সদরে। মানে সদরে মুখে মুখ ব্লাড বাইরে যাইছে। ছানাটার বাঁচবার পজিশন নাই, পুরো ছটফট করতেছিল ছানাটা। আমরা গরিব লোক কি করবো বাবা, আমরা লিয়ে আসলি ছানাটাকে। আমরা নিজে বললি যতটা পারবো আমরা চেষ্টায় লাগি থাকবো। তো হইলো না, ছানাটা বাঁচিল না। তো ঘরে আমাদের কিছু হয়নি, আমরা কি করে জানবো। আচ্ছা, এইখানে কি নাম দিদি তোমাদের? বিমলা সর্দার। আচ্ছা, তোমাদের বহিন ছিল লক্ষ্মী সর্দার? বহিন ছিল লক্ষ্মী সর্দার। দেহান্ত হয়ে গেল, কি বলবে? পড়াবো বলি করে দিয়েছিলি, ভালো করে থাকবে বলি করে। আমরা তো লেখা পড়ি নাই, আমার ভাইও নাই আমিও নাই। ভালো সে পড়াবো বলি করে দিয়েছিলি কস্তুরবায়ে। কাম পাঠ করতেছিলি আমরা, এমনি তো পড়াতে নাই পারতেছিলি, ওটা বলি ভালো বলি দিলি। সরকার ভালো করে ট্রিটমেন্ট হইলো নাই। ভালো করে ট্রিটমেন্ট হইতো তো এরকম নাই হইতো আমার বহিন। क्या नाम है मुखिया जी आपका? मेरा नाम अभिषेक सरदार है और मैं सानग्राम पंचायत का मुखिया हूँ। पोटका में ब्रेन मलेरिया जो है कि केसेस लगातार आ रही हैं सामने, और जिस घर में अभी हम लोग खड़े हैं उस घर का पहला पेशेंट का मृत्यु हो चुका है बच्ची की। क्या कुछ कहेंगे, क्या समस्या है?
कहना ये है कि ये जो घर है, ठीक है, आदिवासी समुदाय भूमि समाज से है और ये एकदम गरीब परिवार की थी, ठीक है। और इसको हम लोग कस्तूरबा विद्यालय में मतलब एडमिशन कराए थे, ठीक है, मतलब 6 क्लास में। 1 साल हो गया था, ये दूसरा साल है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये लोग कोई पढ़े लिखे नहीं हैं। एक उम्मीद था कि चलो एक बेटी कम से कम पढ़ेगी तो मतलब थोड़ा समुदाय में या समाज में अच्छा होगा। पर ऐसा दुर्भाग्य की बात हुई कि वो कस्तूरबा में पढ़ रही थी और कस्तूरबा में ही उसको ब्रेन मलेरिया का बीमारी हुआ, ठीक है। और उसी बीमारी से इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो गया। सबसे ख़राब लगा हमको जब कस्तूरबा में इतना सारा व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, इतना बजट है, जो कि पीएम श्री विद्यालय है, ठीक है। आप अगर देखिएगा कि वहाँ का बजट जो हमें जानकारी है, ठीक है, तो उसका जो फूडिंग या ट्रीटमेंट को लेकर के एक अच्छा खासा बजट है। पर ये लापरवाही के चलते, कस्तूरबा का लापरवाही के चलते, ठीक है, कि बच्चे का कब से बीमार है क्या है कोई देखा नहीं। जब उसका पूरा सीरियस हो गया तब उसके ऊपर कार्रवाई की गई, ठीक है। और गार्जियन को क्या किया, दूसरे के माध्यम से सूचना मिली कि आपका बहन बीमार है, जो कि घर में अनाथ बच्चा है, ना माँ है ना बाप है, ठीक है। अभी वर्तमान में एक उसका बड़ी बहन है और एक भाई है, बस इतने ही लोग हैं घर में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि पिछले सोमवार को एकदम सीरियस टाइम में सीएससी में एडमिशन कराई गई, ठीक है। पर विभाग मतलब कस्तूरबा विद्यालय खाली एडमिशन करा दिया, ना देखने तक गया ना पूछने तक गया कि पेशेंट का क्या स्थिति है, ठीक है। एडमिशन कराने के बाद सोमवार को रखा, मंगलवार को रात 10:30-11 बजे बोला कि यहाँ नहीं हो पाएगा, आप लोग सदर ले जाइए, ठीक है। अब लापरवाही देखिए, उसमें सबसे बड़ी खराब लगा कि विद्यालय परिवार से कोई नहीं गया। अब बताइए, ये अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं पता है, इनको दे करके अगर आप रिफ़र कर दीजिएगा और ले जाइए सदर हॉस्पिटल या एमजीएम ले जाइए, ये बेचारी एडमिशन करा पाएगी। उसमें तो ये नहीं लिखा हुआ था कि ये कस्तूरबा का विद्यालय है, इसको मतलब इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कराई जाए। अब इन लोगों को सदर में एडमिट कराने के लिए परेशान, ठीक है। और पोटका में सीएचसी में तो और ख़राब लगा कि वहाँ कोई एम्बुलेंस था ही नहीं, ठीक है। इन लोग 1200 रुपया दे करके गाड़ी लेकर के गया है, बताइए कितना ख़राब लगता है। अगर वो सही महीने में अगर कस्तूरबा विद्यालय कोई परिवार जाता और एडमिशन कराता, लेकिन कहा जाता है कि उसका सारा जिम्मेदारी रहता है, ठीक है, कि बच्चा का देख रेख करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें मैं कहूँगा कि कस्तूरबा विद्यालय में और जो बच्चे लोग हैं उनके जांच भी होनी चाहिए, ठीक है। अभी बाद में जब जांच हुआ ये घटना घटने के बाद तो पता चला कि और 3 पेशेंट वहाँ से पॉजिटिव पाई गई, ठीक है। तो कम से कम मेरा विभाग से या सरकार से अनुरोध रहेगा कि कस्तूरबा विद्यालय के सही मायने में जांच करते हुए उसका व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण की जाए, ताकि और बच्चों का दुर्घटना ना हो। थैंक यू सर। सर, कोटपा विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो मलेरिया के केसेस सामने आ रहे हैं, उसको रोकना में तो और क्या कुछ कर रहे हैं, और अब तक कितना केसेस सामने आए, मृत्यु भी कई सारे। सीएससी पोटका में अभी 3 मृत्यु हो चुका है और हम लोगों ने आज 3 दिन से हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। लगातार सभी जगह टेस्ट करके पॉजिटिव निकाला जा रहा है और कल 28 को पॉजिटिव था, जिसमें से 24 पीएफ था, पीवी 2 था और मिक्स 2 था। आज भी सभी जगह टेस्ट हो रहा है। आपका झरिया में कुछ निकला है, झरिया का खड़िया कोचा में, और उसके बाद कोंदर में भी कुछ निकला। और अभी आपका 2 स्कूल में हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं, सबर नगर और एकलव्य में। एकलव्य में तो नहीं निकला, लेकिन सबर नगर में भी 3 गो पेशेंट निकला। और आज का डाटा अभी तक आया नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं दे पा रहे हैं। शाम तक डाटा दे पाएंगे आपको। सभी जगह टेस्ट हो रहा है। सर, जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह इससे बचा जा सकता है? जनता को जागरूक होना पड़ेगा और इसमें जनप्रतिनिधि भी जागरूक करने का भागीदारी बनेंगे, तभी रोकथाम कर पाएंगे। हम लोग को जहाँ जहाँ पेशेंट निकल रहा है वहाँ का
जल जमाव ना हो। जल जमाव से ही मच्छर का पनपता है, और जैसे ही बुखार हो तुरंत अपना सरकारी अस्पताल में आकर के जांच कराएं, ना कि आरएमपी के जा करके अपना ट्रीटमेंट 2 दिन 3 दिन 4 दिन बिता देने के बाद आने के बाद हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जिसमें रीनल फेलियर की लिवर फेलियर हो जाता है, सीवियर एनीमिया हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा पेशेंट को दिक्कत होती है। और जैसे ही फीवर आएगा जांच करने से उसका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू हो जाएगा। ट्रीटमेंट करने से पेशेंट बचा जा सकता है। सर कई बार ये आरोप भी लगा है कि रेफर करने के दरमियान जो एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवाई जा रही है उस तरफ से। नहीं, एम्बुलेंस तो हम लोग दे रहे हैं, मेरे पास 2 एम्बुलेंस ऑलरेडी है। हाँ, 108 कॉल करने से दिक्कत हो रही है, स्टेट से ही कुछ गाड़ियाँ खराब है स्टेट से, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर हमको ज़रूरत पड़ता है तो मेरे पास 2 एम्बुलेंस है, उसको भेजते हैं हम।